So my objective is to share my 22 years of experience in a capsule format which will help everybody grow. Hi, I'm here with Mr. Abhishek Sharma, who is an industry veteran and, as you can see, has won multiple awards and has served as the CFO at multiple companies. You can find more details about his career on his LinkedIn. And I am a student who is coming into the industry. So we're here today to have a chat, share insights and understand the state of industry as it is today, or what is the future for me who is entering the workforce going to be like. Thank you so much, Neelmani, for that wonderful introduction. So, ये एक तरह से start और launch of my own YouTube channel. I think I told you. Absolutely. कि that YouTube channel is basically to help all the youngsters, young professionals, even जो जिन्होंने इंडस्ट्री में एंटर कर रखा है, 5 years 6 years एक्सपीरियंस है. So my objective is to share my 22 years of experience in a capsule format which will help everybody grow. उस YouTube चैनल का नाम है Grow with Peace. So basically what we are trying to say is कि growth is possible, सबके लिए possible है, but very important to grow with peace, not at a disturbed mind. How do we achieve that? How do we achieve all the growth which we want, but with peace? तो उसी के ऊपर वो चैनल बात करेगा. Yeah, I think that's very important because there are an innumerable number of lessons you only learn by experience, and if someone is able to learn from your experience, not only have you made your own life better, but also helped someone save years of misery, or to understand the story of what it took to become the person that you have become today. We'll cover professionally first and then perhaps in between share personal tidbits. But let's start with the basics. So education. So basic से पहले मेरे ख्याल से ये बहुत important है कि जानना कि what will I cover in my channel also. Absolutely. Because it is a growth with peace story. So that will be in English. इन्होंने मेरे को बताया कि he is I think more comfortable आज के generation की तरह. He is more comfortable in English and that is good. मेरा क्या है कि I can switch in between English and Hindi. और उसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि बिकॉज ये सबको समझ में आए. सो अपनी बात इंग्लिश में रखना या फिर दोनों भाषाओं को मद्देनज़र रखते हुए रखना. तो आपने मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें बता दिया कि मेरे को नहीं पता कितना इकोनॉमी में, बट येस मैंने MNCs में काफ़ी काम किया है एट सीनियर लेवल्स. स्टार्टअप्स भी स्टार्ट करी हैं. आई हैव अटेंडेड बोर्ड मीटिंग्स, आई हैव बीन CFO. बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों से भी मिला. अभी लास्ट वीक ही मैं जनरल साहब से मिला था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और उनसे भी काफ़ी इंसाइट्स ली. अंडरस्टैंड भी किया कि अगर हम जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके चलें तो हमारा जो मार्केट है या इकोनॉमी है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा. टू आंसर योर क्वेश्चन नीलमणि, आई थिंक मेरा एजुकेशन की बात करी जाए तो मैं CA हूँ और MBA भी किया है मैंने. okay. हाँ, तो मैंने MBA किया है IIM से. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हिंदुस्तानियों की आदत होती है, थोड़े हम लालची होते हैं तो हमको डिग्रीज़ भी कलेक्ट करने का शौक़ हो जाता है. पर किसी ने मुझे बताया था बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एजुकेशन में होता है, या कुछ भी आप बनना चाह रहे हैं, कुछ भी आप बनते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, इट इज़ हाउ यू मेक योर सेल्फ. आप कितने अच्छे इंसान बनते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाउ यू बिहेव विद पीपल. अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना, अपनी बात रखना और अपनी बात समझाना, और अल्टीमेटली टू गिव बैक टू सोसाइटी, जो भी आपने लिया है, आप किसी तरह लोगों को वो नॉलेज शेयर कर सकें, सो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो जो भी आप प्रोफेशनली सीखते हैं उसका सार यही निकलता है कि हाउ यू कैन हेल्प एवरीबडी. सो अगर आपकी बात का मैं जवाब दूं
तो yes, my journey has been 22 years experience in different industries, in different areas, कुछ MNCs में, कुछ startups में, और मैंने इंश्योरेंस में भी काम किया है और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी मैंने एजुकेशन हासिल करी है। तो ये बट अल्टीमेटली एजुकेशन, असली एजुकेशन वही होती है जो आप दुनिया में सीखते हो। So I think then we're all students of life, and some of us who work really hard collect degrees like candy. Yes. And So मेरी एजुकेशन बेसिकली कलकत्ता में ही हुई। So I was born and brought up there. I then moved to Delhi some 18 years ago. तो लेकिन मेरी एजुकेशन पूरी कलकत्ता में ही। वहाँ पे एक सीए का कल्चर है। Yeah. तो बेसिकली हर थोड़े दूर पे अगर आपको जोर से आप चिल्लाएं सीए कौन है, तो कोई ना कोई हाथ खड़ा हो जाता है। yeah, like a stone's throw and it probably goes and hits a CA, you know. And what was your school life like? Were you happy? Were you stressed? What was your priority? Did you perform well academically? तो स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो सभी की स्कूल लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं वो उस वक्त लगता है उसको कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, भाई मेरे को स्कूल नहीं जाना है कल। जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने स्कूल से, आज मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ, तो कल की छुट्टी करा दो। ये एटलीस्ट क्लास 6-7 तक तो ऐसा रहता ही है। उसके बाद धीरे धीरे आपके जैसे दोस्त बनते हैं, आपको जाने का मन होने लगता है। पर फिर भी स्कूल लाइफ में अपनी परेशानियाँ होती हैं। उसकी किसी से झगड़ा हो गया, कोई कहीं ना कहीं अगर आजकल तो ज़्यादा होता है, पहले भी होता ही था, रोमांस का मामला भी फंस जाता है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ें याद आती हैं और वो लगता है कि वो बिछड़े दोस्त और वो टाइम, स्कूल टाइम किसी का भी मैं बोलूँगा बेस्ट होता है। इसके ऊपर शायद एक गाना भी है, शायद सुना होगा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। Wow. तो वो I've not heard this, but हाँ, I तो would जगजीत love सिंह जी का गाना है, बहुत अच्छा है। तो ये बैक देन, आई मीन मैं भी जब छोटा था तब हम सुनते थे गाना ये। सो इट इज़ अ रियली ओल्ड सॉन्ग, पर आई थिंक दिस इज जनरेशन टू जनरेशन। एवरीबडी रिमेंबर्स देयर स्कूल डेज आफ्टर दे हैव पास्ड। Yeah. इनफैक्ट ये हर चीज़ के लिए, जब भी कोई चीज़ चली जाती है तब हम उसको ज़्यादा महत्व दे पाते हैं। So important. इसके ऊपर एक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का मैंने सुना, उनके साथ मैंने काफ़ी काम भी किया, तो उन्होंने वो कहते हैं अभी भी कि दुनिया एक जादू का खिलौना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो वो जो नहीं मिलता दिन बार, इसके ऊपर अंग्रेजी में भी कहावत है कि टंग ऑलवेज गोज टू द ब्रोकन टूथ और Oh my gosh. Wow, I've not heard this, but I've had this problem with me. You know, this one tooth is problematic, and somehow my tongue would rest only at that tooth. And when you said this, Kahavat, my mind was like, Neil, you have this problem. So that makes so much sense. I see why. And on that note, so people like me who were first generation in a good school didn't have anybody to teach them social cues. So essentially when particular people said things, it meant, it had an underlying meaning जो मैं कभी समझ नहीं पाता था, and because of which I faced a lot of issues interacting with people. और मेरे को लगा था कि this is, you know, very unique problem to me because of my background. नहीं, यूनिक नहीं है। इनफैक्ट आई इंटरेक्ट विद सो मेनी यंगस्टर्स नाउअडेज, एंड the reason I am starting this channel Growth with Peace is also because lot of youngsters, young professionals are requesting कि हमको पीस, शांति चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि इंटरेक्शन नहीं कर पाना और इंटरेक्शन का मोड नहीं पता होना कि कैसे करना है, बिकॉज कोविड इतना निकला है, और अदरवाइज भी आप लोग जैसे कंप्यूटर जनरेशन है, सो व्हाट्सएप पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं या फिर मैसेजेस पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस, उसके ऊपर हम सब आराम से चर्चा करेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने कही थी, लकीएस्ट पीपल वो होते हैं, लकीएस्ट लोग वो होते हैं जिनके ज़्यादातर कनेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स होते हैं। वाई दे आर लकी?
बिकॉज पहली बात दूसरी हम नेटवर्किंग बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, कुछ उनसे मिलें जो आपके एज ग्रुप में हैं, कुछ उनसे मिलें जो आपके एज ग्रुप में नहीं हैं, बेशक वो आपसे बड़े हों या छोटे हों। तो उनसे वाई आर दे लकी? दे लकी बिकॉज यू गेट टू मीट सो मैनी पीपल। तो पहली बात तो आपका खुद का नज़रिया चेंज होता है, आप काफ़ी चीज़ें नई नई सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे एक आधा चीज़ें अभी सीखी हैं हम स्टार्ट करने से पहले ऑन सम ऑफ द एप्स विच यू वर सजेस्टिंग। इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़ होती है जो कि आपके पास पहले आती है, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों को अगर जानते हैं, तो कोई भी अगर कुछ ऐसी न्यूज़ होगी जो शायद पब्लिश हो या फिर बाद में आए, एनी गुड अपॉर्चुनिटी विच इज़ देयर, वो शायद आपको पहले पता चल जाए। राइट। इवन इफ़ यू आर मे बी लुकिंग आउट फॉर अ जॉब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काफ़ी लोगों को जानते हैं उस इंडस्ट्री में या फिर तो किसी ने कहीं छोड़ा है, तो मे बी दैट वैकेंसी इज़ देयर। इससे पहले वो पब्लिश हो, यू कैन प्रोबेबली अप्रोच। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू मीट पीपल, नो पीपल। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे करना है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, इवन दो यू मे नॉट बी अ सोशल पर्सन, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाउ टू इंजीनियर इट फॉर द बेनिफिट। सो बेसिकली आपको अल्टीमेटली अगर ग्रो करना है और शांति के साथ ग्रो करना है, यू कैन नॉट बी ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू वन मोड। आप किस तरह से अपने नेटवर्क का भी और नेटवर्क बढ़ा भी सकते हैं और उसका फ़ायदा भी लेना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप लें, you should also give. But on the flip side, what do you think about the cognitive debt that AI is causing? For example, आज के दिन आदमी email नहीं लिखना चाहता है because they just give the instruction to these various agents and LLMs. They don't do simple math questions, offload that because the willingness to think by self is lower when you can just say things out as an instruction and get a response. So AI को हमको AI we cannot wish away. AI is here to stay. अब AI हर जगह इम्पोर्टेंट है। AI को यूज़ करके आप अपना ग्रोथ कितना और पीसफुल और ज़्यादा बना सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। AI को हम सोचें कि AI नहीं होता तो वो अच्छा था, AI तो है और आगे और आएगा, लेकिन AI से डरना नहीं है। AI से हमको दोस्ती करके और आगे निकलना है, पीसफुल तरीके से ग्रो करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें ग्रो करना है और हमें दिमाग की, मन की शांति भी रखनी है। और AI को आप एक टूल की तरह लीजिए। जैसे आपको पेन मिला है, पेन एक टूल होता था जिससे आप लिखते थे, AI भी एक टूल है जो आपकी हेल्प करेगा। राइट, इंटरेस्टिंग। हेल्पिंग मैनी पीपल। अभी कई सारे फाउंडर्स होते हैं मेरे पास आते हैं टू हेल्प देम एंड आई लाइक टू। सो इट्स बेसिकली इतने लंबे कैरियर या इतने लंबे अरसे का एक निचोड़ अगर वो ये है कि अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग कैरियर्स पे जो चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को पीस ऑफ माइंड के साथ कैसे ओवरकम करना चाहिए और ग्रो कैसे करना चाहिए, तो वही हम नटशेल में बात करना चाहेंगे। जो हमने पॉइंट्स अभी रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स ही एक तरह से हमारे in more depth and detail. हाँ। And on that note, I think is a good very nice point to conclude the conversation, or maybe part one of the conversation. And yes, you were saying? नहीं, आई एम सेइंग इट वाज वेरी नाइस टू हैव इंटरेक्टेड। इतनी हमने चीज़ें जो डिस्कस करी हैं और यही हैं सारी चीज़ें जो कि हम आगे जाके इन पे एक पे डिटेल में बात करेंगे अपने ग्रोथ विद पीस के ऊपर, और वी विल हेल्प एवरीवन अचीव सक्सेस विद ग्रोथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। Thank you very much for agreeing to meet, record, shoot, share your story, and looking forward to the launch of your channel. Yes. And I think even if a handful of people are applying the lessons that you're sharing, the wisdom that you're sharing on this channel, that would be worth all of the effort and resources you're spending. Because Correct. especially if the particular people are young,
if you're able to solve for peace when they're young, they're going to have that much longer time in their life where they're able to stay peaceful. Absolutely. So- and peace also increases your life. Okay, yeah. It may increase quantity, but it definitely increases the quality. Absolutely. There's no two ways about it. I'm so blessed that I've been through the symphony of coincidences that helped me gain a very peaceful state of being, and I think this is Yes. how life should be lived. Thank you so much, Nilmani. Awesome.